Hey students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter today of class 8, which is chapter number 17 about stars and the solar system. Okay, let's start it. See, as you know that you live on the earth, you all know that the earth is a planet that moves around the sun. The sun and its planet are known as solar system. So student, what they're saying, as we all know, that we live on the earth. Okay, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. अर्थ एक planet है जो कि किसके अराउंड, सन के अराउंड मूव करता है, एंड सन along with its planet makes the solar system. Okay, चल. The vast space includes everything from the smallest particles to the biggest structures that exist on the earth or in space. It is called the universe. It includes all the stars, the sun, the planets and their moons, meteoroids, comets, the empty space and the gases between them. So vast space, अगर हम बात करें स्पेस की, तो इतना बड़ा हमारा vast space है जिसके अंदर हर एक चीज इंक्लूडेड है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द बिगेस्ट स्ट्रक्चर व्हिच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ या और इन स्पेस, एंड दे ऑल टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर बेसिकली स्टार, सन, प्लैनेट्स, उनके मून, मेटेरॉइड्स, कॉमेट, एम्प्टी स्पेस, गैसेस बिटवीन देम, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स. Now next we have the topic celestial objects. What are celestial objects? The star, planet, moon. Okay, star, planets, moon, and बहुत सारे ऐसे objects हमारे sky में, they all are known as celestial objects. So whatever heavenly bodies you see in the sky are known as celestial objects. So जो भी heavenly bodies आप sky में observe करते हो, they all are considered to be celestial objects. Okay, in ancient time में लोग इन celestial objects को basically क्या मानते थे? Gods मानते थे, which they used to worship. Okay, but with the development of science and technology, लेकिन science and technology के development के साथ साथ the people came to know that these are the celestial objects. Now, the science that deals with the study of the celestial object is known as astronomy, and the one who studies this science is known as astronaut. अब एक ऐसी साइंस जो इन celestial object की स्टडी से डील करती है, उस साइंस को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी. एंड द पर्सन who study this science, वो पर्सन जो इस साइंस को, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करता है, he is known as astronaut. So now we have to discuss about astronomy. As I told you, study of celestial objects and associated phenomena is known as astronomy. Celestial objects and उससे related जितने भी phenomena हैं, उनकी जो study करी जाती है जिस science के अंदर, that is known as astronomy. Astronauts telescopes का use करते हैं for studying the celestial objects. Now as the sky is far away, क्योंकि जो हमारा sky है वो काफी distant पे है, and so are the celestial objects also. So इसीलिए टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है in order to study these distant objects. Now, so first of all, you will study about the celestial object that is moon. The moon is a natural satellite. सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे? एक celestial object के बारे में, that is moon. Moon एक natural satellite है. As we all know कि planet sun के around revolve करते हैं in an orbit. Similarly, satellite एक ऐसा object है जो किसी भी planet के around revolve करता है in an orbit. Okay, and so इसीलिए moon को भी satellite कहा जाता है because ये earth के around revolve करता है. Now let's study about moon in detail. So now the first topic is moon. I told you, moon is the second brightest object in the sky after the sun. It is the only natural satellite of the earth. After the sun, sun के बाद जो second brightest object हमारे sky में है, exist करता है, that is moon. And moon only natural satellite है हमारे earth की. Like the earth. अब earth की तरह moon भी किसका बना है? Rocks का bana है, but it has no atmosphere, no air and no oceans. Okay, and hence without air and water, इसीलिए without air and water there is no life on the moon. चलो, now the phases of moon. अब moon के phases के बारे में बात करते हैं. The various shapes of the bright part of the moon are seen during the month and they are known as the phases of moon. Moon is a non-luminous body. अब हमें moon के bright part की जो various shapes during the month visible होती है, उन various shape को phases of moon कहा जाता है. Moon एक non-luminous body है. That means what? It cannot produce its own light. Okay, see, this means that the moon does not have its own light. Moon की अपनी खुद की light नहीं होती है. It shines because it reflects the light falling on it from the sun. ये जो shine करता हुआ हमें दिखता है brightly in the sky during the night sky, ये किसकी वजह से? उस sun की light rays की वजह से जो moon के ऊपर fall करती है, and moon उन्हें reflect back करता है, because of which we see the moon shining brightly in the sky. If you observe the moon, अगर आप moon को naked eye से observe करोगे तो आप उसको उसके ऊपर dark patches देखोगे. ये dark patches जो moon के ऊपर present है, they indicate कि वहाँ पे क्या है? Mountains are there on the moon. An American astronaut थे named Neil Armstrong and Aldrin. ये मून पे इन्होंने लैंड किया था किसके थ्रू? एक व्हीकल के थ्रू, that is named Apollo 11 and when in July 1969.
दो साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि जो मून का सरफेस है वो एक रॉकी डेजर्ट है and there was no water or vegetation on the surface of moon. Okay, it was a rocky desert क्योंकि वो एक rocky desert है तो वहां पे ना तो कोई vegetation है ना water है. Okay, and that is why life is not possible on moon. ठीक है, only 1/6. ठीक है, केवल अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल है उसका केवल 1/6 ग्रेविटेशन पुल is present on the moon. If you talk about the temperature of the moon, अगर हम मून के टेम्परेचर की बात करें ड्यूरिंग डे टाइम तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एंड नाइट टाइम इट इज 168 डिग्री सेल्सियस एंड इस इनहैबिटेबल कंडीशंस की वजह से लाइफ इज नॉट प्रेजेंट ऑन द मून. द शेप ऑफ द मून, अब मून की जो शेप है वो क्या होती है, कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है. सम डे इट इज बिग, किसी दिन वो आपको बहुत बिग दिखाई देता है, अदर डे इट इज स्मॉल. एंड ये किसकी वजह से, बिकॉज मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. तो जो शेप हमें दिखाई देती है मून की वो सिर्फ वही वाला पार्ट है जिसपे सनलाइट फॉल कर रही है. एंड दैट इज व्हाई आपको मून डिफरेंट फेजेस में देखने को मिलता है क्योंकि ये सिर्फ उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन की इसके ऊपर फॉल कर रही है, सन से ही रिसीव कर रहा है. सो देयर आर 8 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड फेजेस. कितने? 8 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड फेजेस हैं मून के. एंड ये जो फेजेस हैं मून के वो इनके सीक्वेंस ऑफ अकरेंस में हैव बीन डिस्कस्ड विद अस. नंबर 1 वी हैव न्यू मून. So the part of the moon, अब मून का वो पार्ट जो कि अर्थ को फेस करता है वो लाइट रिसीव नहीं करेगा फ्रॉम द सन एंड हेंस दैट पर्टिकुलर पार्ट विल अपीयर डार्क, राइट. लेकिन जो अदर पार्ट है मून का जो कि फेसिंग अवे है, मतलब जो अर्थ की तरफ फेस नहीं कर रहा है, वो सनलाइट के थ्रू लिट हो रहा है. एंड ये जो पोजीशन है मून की जब वो हमें डार्क अपीयर होता है ऑन द अर्थ, दिस इज नोन एज न्यू मून. एंड न्यू मून डे को क्या कहा जाता है? अमावस्या कहा जाता है. चलो, the next phase which we have is after new moon, a waxing crescent moon. तो जैसे जैसे मून जो है अराउंड द अर्थ क्या करता है, मूव करता है, तो आपको उसका और ज्यादा इल्यूमिनेटेड हाफ पार्ट देखने को मिलता है एंड हम कहते हैं कि मून इज वैक्सिंग. सो एट फर्स्ट हमें सिर्फ एक सिल्वर आर्क देखने को मिलता है जो कि डे बाय डे ग्रो करता है एंड इस फेज को क्रेसेंट मून कहा जाता है. देन नेक्स्ट वी हैव क्वार्टर मून, अ वीक आफ्टर द न्यू मून. अब न्यू मून के एक वीक बाद जब मून कंप्लीटली अबाउट अ क्वार्टर होता है अपनी जर्नी के अराउंड द अर्थ, तो हमें वहां पे उसका हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखता है जिसको आप क्वार्टर ऑफ द मून कहते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर फेज. देन नेक्स्ट वी हैव वैक्सिंग गिबस मून. सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक्स में आपको क्या मून का और ज्यादा इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखेगा एंड दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग गिबस मून. देन नेक्स्ट वी हैव फुल मून. So 2 weeks after the new moon, अब न्यू मून के 2 weeks बाद मून अब हाफ वे होता है अपनी रिवोल्यूशन पे एंड इल्यूमिनेटेड हाफ जो है वो किसके साथ कोइंसाइड करता है? उस वाले पार्ट के साथ which is facing the earth. So that means हमें वहां पे अब एक फुल डिस्क दिखाई देता है, that is a full moon and full moon day को we call पूर्णिमा. Okay, चलो. Then waning gibbous moon. अब waning gibbous moon की बात करते हैं तो from now on, अब इसके बाद जब तक वो दोबारा से न्यू नहीं हो जाता, इल्यूमिनेटेड पार्ट जो मून का है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना हमें विजिबल होता है, इसे हम वेनिंग कहते हैं. देन लास्ट क्वार्टर मून, अब लास्ट क्वार्टर में यानी कि 3 weeks आफ्टर न्यू मून जो लेफ्ट हाफ है वो लिट अप होता है एंड समटाइम्स इसको थर्ड क्वार्टर भी कहा जाता है. जो लास्ट क्वार्टर मून फेज होता है वो वेनिंग क्रेसेंट एंड वेनिंग गिबस मून के बीच का होता है. देन वेनिंग क्रेसेंट मून, so during a waning crescent में मून जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो थिन सिल्वर, एक पतली सी सिल्वर आर्क जितना रह जाता है एंड इस फेज के कंप्लीट होने के बाद मून साइकिल दोबारा से स्टार्ट होती है विद द न्यू मून. सो द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सन. सो मून का जो लाइटेड पार्ट है वो हमेशा सन के टुवर्ड्स क्या करता है? पॉइंट करता है. एंड अगर मून का लाइटेड पार्ट अपने राइट हैंड साइड पे है दैट मींस सन उसके अहेड है एंड अगर मून का लेफ्ट पोर्शन लाइटेड है दैट मींस मून जो है इट इज अहेड ऑफ द सन. Okay, now moon surface. So for the first time in 1969, तो 1969 में पहली बार अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने अपने एडविन ऑल्ड्रिन कलीग के साथ मून पे लैंड किया था. उन्होंने क्या फाउंड किया कि मून का जो सरफेस है वो एज प्लेन नहीं है एज सीन फ्रॉम द अर्थ. ये डस्टी एंड बैरन है, काफी सारे क्रेटर्स आर देयर ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन द मून सरफेस. ओके, इसके साथ साथ मून पे काफी लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स भी हैं. इनमें से कुछ एरियाज काफी हाई है एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. ठीक है, उसके साथ साथ मून हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, ना तो मून के पास वाटर है ना ही एयर है. ओके, ना ही वहां पे एटमॉस्फेयर है. और ये जो एब्सेंस है वाटर की ऑन द सरफेस ये मून को अलाउ करता है टू प्रिजर्व मच ऑफ इट्स एंशिएंट फीचर्स.
मून के एब्सेंस की वजह से, मून पे वाटर के एब्सेंस की वजह से क्या है, मून अपने काफी सारे एंशिएंट फीचर्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इवन जो एस्ट्रोनॉट की फुटप्रिंट्स है, जो एस्ट्रोनॉट्स वहां जाते हैं मून पे, वो भी आज के टाइम तक क्या है वहां पे इंटैक्ट रहते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्टार्स। नाउ स्टार इज अ ल्यूमिनस बॉडी। अब स्टार की बात करें तो स्टार क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है, बिकॉज ये अपनी खुद की लाइट एमिट करता है। साइज जो है स्टार का वो काफी बिग होता है देन द अर्थ। कुछ स्टार्स तो सन से भी ज्यादा बिग होते हैं, एंड बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, सो दे लुक सो टिनी। ओके, आप उन्हें नाइट टाइम पे ही देख सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम जो सन की लाइट होती है वो इतनी इंटेंस होती है कि स्टार्स को देखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। स्टार्स आर मच बिगर देन द अर्थ। स्टार्स का साइज अर्थ से बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। कुछ स्टार्स सन से भी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये हमें स्मॉल क्यों अपीयर होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, राइट। नाउ द सन दैट इज आल्सो अ स्टार। अब सन जो एक स्टार है वो 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ, ओके। एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है दैट इज अल्फा सेंचुरी, जो कि हमारे कितना, इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 मिलियन, जो कितना 40 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स आर नॉट परमानेंट। स्टार्स परमानेंट नहीं होते हैं। ये किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, मेनली हाइड्रोजन, है ना, एंड एंड अप होते हैं एज अ व्हाइट ड्वार्फ और एज अ न्यूट्रॉन स्टार। स्टार्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइटनेस, कलर, टेम्परेचर एंड साइज। जब हम स्टार्स को अर्थ से देखते हैं, स्टार्स हमें मूव करते हुए दिखते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन ऑफ द अर्थ दैट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स एक्सिस, ओके। नाउ इन अमंग स्टार्स, अब सभी स्टार्स के बीच में एक और स्टार होता है जो कि स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ, एंड इसको हम पोल स्टार यानी कि ध्रुव स्टार बोलते हैं। पोल स्टार स्टेशनरी इसीलिए अपीयर होता है बिकॉज ये हमारे अर्थ की रोटेशन के इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टलेशंस। मेनी ऑफ द स्टार्स अपीयर्स इन ग्रुप फॉर्मिंग पैटर्न्स। अब बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हमें क्या, ग्रुप्स में अपीयर होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कुछ पैटर्न्स को बना रहे हैं। ये पैटर्न्स कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स को रिजेंबल करते हैं, एंड ऐसे रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स को कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। इंडियन टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टलेशंस को नक्षत्र कहा जाता है, एंड सो फार 88 कॉन्स्टलेशंस को रिकॉग्नाइज एंड नेम किया गया है। जितने भी स्टार्स कॉन्स्टलेशंस में होते हैं, दे ऑल स्टे टुगेदर, एंड एक कॉन्स्टलेशन की शेप ऑलवेज रिमेन्स द सेम। नाउ सम ऑफ द कॉन्स्टलेशंस आर डिस्क्राइब्ड हियर, एंड नंबर 1 वी हैव उर्सा मेजर, ठीक है, जिसको विराट सप्तऋषि कहा जाता है। सो उर्सा मेजर में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, एंड ये स्टार्स एक डिपर की फॉर्म में अरेंज होता है। डिपर में क्या होता है, 3 स्टार्स उसके हैंडल में होते हैं, 4 उसके बोल में होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, 3 स्टार्स इन इट्स हैंडल एंड 4 स्टार्स इन इट्स बोल, एंड दैट इज व्हाई इस कॉन्स्टलेशन को बिग डिपर भी कहा जाता है। अभी नेम बिग डिपर हमने एक वर्ड डिपर से ड्राइव किया है। ये डिपर क्या है, एक ऐसा यूटेंसिल होता था जो ओल्डन डेज में, पुराने टाइम पे यूज किया जाता था वाटर ड्रिंक करने, पानी पीने के लिए। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो 7 ब्राइट स्टार्स है उर्सा मेजर के, अपने बाकी सेवरल अदर फेंटर स्टार के साथ एक पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं जो एक बियर की तरह रिजेंबल करता है। उर्सा मेजर को हम क्या, इन द मंथ ऑफ अप्रैल काफी क्लियरली देख सकते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट द नाइट टाइम, एंड पोल स्टार्स हमेशा सेम फिक्स पोजीशन पे रहता है इन द स्काई। The next constellation we have to discuss about Ursa Minor, that is known as Little Bear. So Ursa Minor का जो इंडियन नेम है that constellation का, that is लघु सप्तऋषि। उर्सा माइनर के अंदर भी 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं, एंड जो स्टार उसके टेल पर होता है, टेल के एंड पे होता है, दैट इज द पोल स्टार, ओके, दिस वन, ठीक। चलो, उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन को कभी कभी पोल स्टार कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है, बिकॉज इसके टेल के एंड पे क्या होता है, पोल स्टार इज देयर। नाउ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उर्सा माइनर को क्लियरली देखा जा सकता है एट द नाइट इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। नेक्स्ट वी हैव ओरियन, दैट इज मृगा। ओरियन को काल पुरुष कहा जाता है। इसमें भी 7 ब्राइट स्टार्स एंड सेवरल फेंट स्टार्स होते हैं इस ओरियन के अंदर, एंड इसमें जो स्टार्स का अरेंजमेंट होता है वो एक हंटर की तरह रिजेंबल होता है, लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज द ओरियन। इसमें जो 3 मिडिल स्टार्स हैं वो ओरियन की या उस हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ब्राइट स्टार्स उसके शोल्डर को एंड लेग्स ऑफ द हंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरियन हमको नॉर्दर्न स्काई में विजिबल होता है इन द लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर, ओके। ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस जो स्काई में है वो काफी क्लोज लोकेटेड है टू ओरियन, एंड सीरियस को लोकेट करने के लिए आपको क्या इमेजिन करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरियन के 3 मिडिल स्टार्स के थ्रू पास हो रही है,
और अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग देखेंगे तो आपको एक बहुत ब्राइट स्टार दिखेगा, दैट इज अ सीरियस ओरियन। ठीक है, ओरियन में काफी ब्राइट स्टार्स होते हैं देन एनी अदर कॉन्स्टेलेशन, और उसमें से दो ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं, दैट इज बेटेलियस शोल्डर वन एंड रिगल दैट इज द फुट वन। नाउ कैसियोपिया, कैसियोपिया क्या है? इट इज फाउंड नेक्स्ट टू द बिग डिपर। ये बिग डिपर एंड ओरियन के नेक्स्ट प्रेजेंट होता है। ये हमें विंटर सीजन में विजिबल है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, एंड इसकी शेप काफी इजी टू रिमेम्बर है बिकॉज ये एक नीट W और M बनाता है जिसको 5 ब्राइट स्टार से बने होते हैं। ओके, यू कैन सी 1 2 3 4 5। कैसियोपिया एक माइथोलॉजिकल क्वीन है ऑफ इथियोपिया, एंड कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन हमें ड्यूरिंग विंटर सीजन विजिबल होता है इन द अर्ली नाइट। Next, we have galaxies. A huge cluster of stars separated in space from the similar other clusters is termed a galaxy. अब एक बहुत बड़ा क्लस्टर स्टार्स का जो कि स्पेस में सेपरेटेड होता है बाकी सिमिलर अदर क्लस्टर से, उसको गैलेक्सी कहा जाता है। About 100 बिलियन गैलेक्सीज यूनिवर्स में प्रेजेंट है, एंड सभी गैलेक्सीज जो हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अर्थ एंड सन जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर अबाउट 100 बिलियन स्टार्स आर देयर। मिल्की वे गैलेक्सी का जो इंडियन नेम है दैट इज आकाश गंगा। ओके, चलो, सो आकाश गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये एक स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है जो कि एक बैंड ऑफ स्टार्स की तरह अपीयर होती है, जो कि क्या फेंटली हमारे स्काई को वाइटन करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देन नेक्स्ट वी हैव सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम क्या है? इट रेफर्स टू अ स्टार एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट। एक स्टार एंड वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिसके अराउंड मूव करते हैं वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाता है। सोलर सिस्टम के अंदर सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ओके, सोलर सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज है सच एज प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। एंड जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है सन एंड इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या करता है? इन सभी को रिवॉल्व रखता है अराउंड द सन। सो मेजरली हाउ मेनी 8 प्लैनेट्स आर देयर जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। एंड ये किस ऑर्डर में है? इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सन। सन एक मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड ये सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द टोटल सोलर सिस्टम मास कंसिस्ट करता है। ओके, 109 अर्थ, कितने? 109 अर्थ क्या है रिक्वायरमेंट बनेगी इतने अर्थ की, सो दैट हम इसको सन के डिस्क के अक्रॉस फिट कर सके, एंड उसके इंटीरियर के अंदर ओवर 1.3 मिलियन अर्थ हम फिट कर सकते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ ह्यूज द सन इज। ओके, सन का जो आउटर विजिबल लेयर है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, दैट इज 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इस लेयर का जो अपीयरेंस है वो मॉटल्ड अपीयरेंस होता है। ओके, इसकी वजह से ड्यू टू द टर्बुलेंट इरप्शंस ऑफ एनर्जी एट द सरफेस। सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन के हीलियम के साथ फ्यूजन के थ्रू। ओके, एंड इट इज अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मास, यानी कि 99.8% मास जो सोलर सिस्टम में, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन। एंड इसके ग्रेट मास की वजह से, सन के ग्रेट मास की वजह से सन का एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, एंड यही फोर्स पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ रखता है एंड प्लैनेट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी बाकी मेंबर्स हैं, उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। नाउ सन ओनली डायरेक्ट नेचुरल सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो सन से लाइट रिसीव करती है अर्थ पर, वो केवल 8 मिनट्स में रिसीव हो जाती है। सन नियरली 93 मिलियन माइल्स, यानी कि अबाउट 145 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ। नाउ वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। सो अब प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट स्टार्स की तरह दिखते हैं, बट इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सिंपलेस्ट मेथड जो है प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट करने का फ्रॉम द स्टार्स इज दैट व्हाट स्टार्स ट्विंकल वेयरएज प्लैनेट्स डू नॉट। ओके, अब 4 प्लैनेट्स जो सन से काफी क्लोजेस्ट है, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। किसकी वजह से? इनके सॉलिड रॉकी सरफेसेस की वजह से। Now, 2 of the outer planets beyond the orbits of Mars, Jupiter, Saturn are known as gas giants. अब Mars, Jupiter and Saturn, इनके जो ऑर्बिट्स में 2 आउटर प्लैनेट्स हैं, उनको आप क्या कहते हैं? गैस जॉइंट कहते हैं। एंड जो मोर डिस्टेंट प्लैनेट है यूरेनस, नेपट्यून। सी, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये हमारे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट थे। उसके बाद आपके मार्स से बाहर
जो दो प्लैनेट्स हैं जो काफी जाइंट होते हैं, जुपिटर एंड सैटर्न, इनको गैस जाइंट कहा जाता है। एंड उसके बाद जो दो डिस्टेंट और प्लैनेट है, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको आइस जाइंट कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मरकरी, जिसको बुध कहा जाता है। सो द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, एंड ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। क्योंकि मरकरी काफी क्लोज है सन के, यहाँ इसको ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। मरकरी के पास कोई सनलाइट नहीं होती है, हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। लेकिन हम मरकरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं या तो जस्ट बिफोर सनराइज या जस्ट आफ्टर सनसेट, ठीक है, नियर द हॉरिजन। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, एंड जो वन डे होता है ऑन मरकरी वो अबाउट 58.6 अर्थ डे के इक्वल होता है। मरकरी अपनी एक रिवोल्यूशन को अराउंड द सन कंप्लीट करता है इन ओनली 88 अर्थ डेज। नाउ वीनस क्या है, शुक्र, वीनस अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर है। ओके, चलो, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे नाइट स्काई में, एंड समटाइम्स वीनस हमें ईस्टर्न स्काई में अपीयर होता है बिफोर सनराइज, एंड समटाइम्स वेस्टर्न स्काई में अपीयर होता है जस्ट आफ्टर सनसेट। इसीलिए इसको हम ऑफनली मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार। ओके, ये अपनी वन रोटेशन को कंप्लीट करता है 243 अर्थ डेज में, एंड वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है इन 224.7 अर्थ डेज। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अर्थ, दैट इज पृथ्वी। अर्थ ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम में ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज वन मून, एंड फ्रॉम स्पेस अर्थ हमें ब्लू ग्रीन अपीयर होता है लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अब जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये क्या है, इसका जो टिल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। अर्थ में जो चेंज होते हैं सीजन्स के, वो इस अर्थ के टिल्ट होने की वजह से ही है। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमारे अर्थ पे है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है ऑन द अर्थ। एंड इसके अंदर क्या क्या है इंक्लूडेड है, एनवायरमेंटल कंडीशन कि अर्थ एक राइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन, सो दैट इस पे एक राइट टेम्परेचर रेंज रहता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, सुटेबल एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। ओके, 2/3 ऑफ अर्थ का 2/3 पार्ट जो है ओशन से कवर्ड है, इसीलिए ये ब्लू ग्रीन अपीयर होता है व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस, एंड इसी रीजन की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट और ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ अराउंड 23 आवर्स 56 मिनट्स का टाइम लेता है अपनी वन रोटेशन को कंप्लीट करने में, एंड 365.26 डेज में वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द सन। Now next planet which we have is Mars, which is known as Mangal. The next planet, okay, Earth के orbit के बाहर जो next planet है that is Mars, and ये slightly reddish appear होता है, and therefore it is also called red planet. Mars पे दो small natural satellite है, that is Phobos and Deimos. Okay, evidences ये suggest करते हैं कि Mars पे कभी rivers, stream, lakes and even oceans भी हुआ करते थे। Mars अपनी एक रोटेशन को 24 hours and 37 minutes में कंप्लीट करता है, एंड वन रिवोल्यूशन को 687 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है अराउंड द सन। नाउ नेक्स्ट वी हैव जुपिटर व्हिच इज नोन एज बृहस्पति। ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, एंड ये इतना लार्ज है कि अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। ओके, इस बड़े से प्लैनेट के अंदर 1300 अर्थ को आप क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, इतना जायंट होता है। हाउएवर जो जुपिटर का मास है वो अबाउट 318 टाइम्स ही है ऑफ दैट ऑफ आवर अर्थ। इसमें कुछ फेंट रिंग्स भी है अराउंड द जुपिटर, एंड जुपिटर को इजीली हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये एक ब्राइट स्टार की तरह दिखता है। जुपिटर 9 hours 55 मिनट्स में अपनी वन रोटेशन कंप्लीट करता है, एंड 4332.59 अर्थ डेज के अंदर, यानी कि अराउंड 11.86 अर्थ डेज के अंदर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होती है ऑफ द जुपिटर अराउंड द सन। नेक्स्ट वी हैव सैटर्न व्हिच इज नोन एज शनि। सो बियॉन्ड जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न है जो कि हमें येलोविश अपीयर होता है इन कलर, एंड इसको जो यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम में वो है इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स। यू कैन सी दीस आर द ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ द सैटर्न अराउंड इट। ये रिंग्स हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होती है, आप इन्हें सिर्फ एक स्मॉल टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। सैटर्न के पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, एंड एक इंटरेस्टिंग चीज जो सैटर्न की है कि ये सबसे लीस्ट डेंस है अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। ये अपनी वन रोटेशन कंप्लीट करता है 10 hours 13 minutes में, एंड 10,759.2 डेज में, यानी कि अबाउट 29.46 years में, अर्थ ईयर्स में, इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। नेक्स्ट वी हैव यूरेनस। यूरेनस सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का,
ओके, ये आप सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड वीनस की तरह यूरेनस भी क्या करता है, आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। इसमें कुछ फेंट रिंग्स है एंड 27 मून्स है। यूरेनस वन रोटेशन कंप्लीट करता है अराउंड इट्स एक्सिस इन 17.9 अर्थ आवर्स एंड वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द सन इन 84 अर्थ ईयर्स। Now the last planet which we have is Neptune, जो कि smallest है of the 4 gas giant in the solar system. ये एक windy place है जहाँ पे काफी giant storm चलती है, flow करती है, that is great dark spot. Neptune पे भी कुछ faint rings है and the first 4 planets है that is Mercury, Venus, Earth and Mars, ये काफी nearer है to the sun than the other 4 planets, इसीलिए इन्हें inner और terrestrial planets कहा जाता है। लेकिन जो प्लैनेट्स हमारे मार्स के ऑर्बिट के बाहर हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स से काफी फार्दर अवे यानी कि काफी डिस्टेंस पे होते हैं, इसीलिए इन्हें आउटर ऑजोवियन प्लैनेट कहा जाता है। नाउ अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, अब कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड दे आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स। सी Now there is a large gap in the orbit of Mars and Jupiter. अब Mars and Jupiter के ऑर्बिट्स के बीच में क्या है, काफी बड़ा गैप है एंड इस गैप को एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ने ऑक्यूपाई किया है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। These are called asteroids. Asteroids को सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप्स के थ्रू देखा जा सकता है एंड जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है सीरीज, उसका रेडियस है अबाउट 350 किलोमीटर। ओके, एंड सबसे स्मॉलेस्ट एस्टेरॉइड का जो डायमीटर है दैट इज 10 मीटर इन साइज। नेक्स्ट वी हैव कॉमेट्स। कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का ही मेंबर है। ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाउएवर जो इनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है अराउंड द सन वो यूजुअली काफी लॉन्ग होता है। एक कॉमेट कितना काफी लॉन्ग अपीयर होता है जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। ये इसका ब्राइट हेड वाला पार्ट है एंड नीचे जो टेल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फेंट होता है। अब जो टेल की लेंथ है वो साइड में ग्रो करती है जैसे जैसे ये सन के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा एंड एक कॉमेट की जो टेल है वो हमेशा डायरेक्टेड होती है अवे फ्रॉम द सन। काफी सारे कॉमेट्स हैं व्हिच आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली एंड में से एक कॉमेट है हेलीज कॉमेट जो कि नियरली आफ्टर एवरी 76 इयर्स अपीयर होता है। इसको लास्ट 1986 में देखा गया था। मोस्ट कॉमेट्स, ज्यादातर कॉमेट्स ऐसे हैं जो कि एक सेफ डिस्टेंस पर ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द सन। हाउएवर कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं कॉल्ड सन ग्रेजर्स जो कि स्ट्रेट इनटू द सन जाके क्या क्रैश हो जाते हैं या फिर इतने क्लोज होते हैं कि ये वहां जाके ब्रेक हो जाते हैं एंड देन दे इवेपोरेट। नाउ मेनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली, एज आई टोल्ड यू बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स हैं जिनको माना जाता है कि वो पीरियडिकली अपीयर होते हैं। उनमें से एक कॉमेट कौन सा था, हेलीज कॉमेट था जिसको एडमंड हेली के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट वी हैव मीटियोर्स। मीटियोर्स को ऑन अ क्लियर नाइट देखा जाता है। ये एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह दिखता है इन द स्काई एंड कॉमनली इनको शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। ऑल्दो ये स्टार्स नहीं होते हैं, ये मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर यूजुअली एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि ओकेजनली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है एंड उस टाइम पे इसकी काफी हाई स्पीड में होता है एंड उस फ्रिक्शन की वजह से ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ये हीट अप हो जाता है एंड ग्लो करके इवेपोरेट होता है वेरी क्विकली। द नेक्स्ट वी हैव मीटियोराइड्स। सम मीटियोर्स, अब कुछ मीटियोर्स काफी लार्ज होते हैं कि ये अर्थ पे रीच करते हैं, अर्थ में अंदर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं सो दैट दे कैन इवेपोरेट। इनके इवेपोरेट होने से पहले, कंप्लीटली इवेपोरेट होने से पहले कुछ मीटियोर्स इतने लार्ज हैं कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेते हैं एंड जो बॉडी अर्थ तक रीच करती है दैट इज कॉल्ड मीटियोराइड। ठीक है, जो मीटियोर अर्थ के अंदर रीच कर जाएंगे उनको मीटियोराइड्स कहा जाता है। मीटियोराइड साइंटिस्ट को हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्टिगेट करने में अबाउट द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेट करने में, उस मटेरियल के नेचर को इन्वेस्टिगेट करने में जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है। नेक्स्ट वी हैव मीटियोर शावर। अब व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, अब जब अर्थ एक कॉमेट की टेल को क्रॉस करता है वहां पे हमें मीटियोर्स के स्वार्म्स देखने को मिलते हैं जिनको मीटियोर शॉवर्स कहा जाता है। कुछ मीटियोर शॉवर्स एक रेगुलर इंटरवल पे अकर होते हैं ईच ईयर। इन 2013 एक मीटियोर था जिसने रशिया के यूरल माउंटेन्स को क्रश किया था जिससे काफी एक्सटेंसिव ग्राउंड डैमेज एंड इंजरीज हुई। Now the last topic which we have is artificial satellites. Okay, so what is it? A celestial body revolving around a planet is called satellite. कोई भी एक celestial body जो कि एक planet के around revolve करती है उसको हम satellite कहते हैं। मून जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो है जो कि मैन मेड है, यानी कि ये भी किसी प्लैनेट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है लेकिन ये मैन मेड होती है, दे आर नॉट मेड बाय द नेचर।
ठीक है, इनको क्या अर्थ से लॉन्च किया जाता है एंड ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो भी अर्थ की ऑर्बिट में मूव करती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है ये काफी क्लोज होती है एज कम्पेयर टू मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, इनको वेदर फॉरकास्टिंग, ओके, एंड ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, इन सब जगह पे यूज किया जाता है। साथ ही इन्हें टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं। इंडिया ने काफी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बिल्ट एंड लॉन्च किया है इनटू द स्पेस। आर्यभट्ट सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एंड उसके अलावा बहुत सारी इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बना के लॉन्च किया गया, लाइक इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट, एक्सेट्रा। Okay, so the chapter is completed and I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Then take care and thanks to everyone.